चलिए, पूछिए। हाँ, Go ahead. sir, about the horizontal meridian, Hmm. can you hear me, sir? Yes, you are very much legible. Yes, Uh, go ahead. Sir, about the meridian, how the anti-subjugation cycle, sir? Like, I am little confused, like, You don't have to worry for actually. yin meridian. Yes, yes, I understand. Uh, for yin regulation, we use anti-subjugation, and for yang regulation, we use subjugation method, right? So in the Yes, sir. horizontal, it is yin chi. So we use Yes. anti-subjugation. But what I want to stress upon, Mhm. please know, Shiva, otherwise you will remain confused. This is a big thing. Of course, I have done this exercise, and in the book, you will find so many pages which are not having relevant explanations, and only the drawings are there. So that is all what I did. What I did was vertical meridians, opposite flow, I took subjugation method, and horizontal meridian, I tried to take anti-subjugation cycle for opposite flow. But I have not yet discussed opposite flow. Many of them do not know what is opposite flow. Hmm? But for you, I'm saying because you are asking one step ahead. And for chi, I have taken the axis. What we are trying to do is find out the pathway of total chi. We are not interested in yang chi's flow or yin chi's flow. Yin is yin, yang is yang. You don't have to worry about it. There is no concept of opposite flow in Chinese. Nothing. Because that is not required. Acupoints are there on the vertical meridian. They are substantially yang, and that's all. That also they don't know. They know about that. It is chi. It's not that. So where is the question of opposite yang? Any direction it is yang. If it is going away from the center, it is yang. Any direction. And it is normal for the Chinese. The question of direction, the question of responsibility, the question of desires, the question of health, everything arises only with chi. Why should we worry? In yang meridian, and that means in vertical meridians, all the points are having, they have been given a status. You can sedate and tone. Sedation means opposite flow, tonification means normal flow. That's all that they are interested in. Heat sedation means cold increase. So there's no that they are not interested in direction. See, you should, I shall read it out from this book, and you have the book, you can open it. Uh, okay, let me, oh, it's not here. It is probably in its generation and distribution option. Anyway, functions of yin and functions of yang. Page number 3, BG meridians. All of you should listen to it because you may get into this vicious cycle in which Shiva has got into, and you will find it very difficult to satisfy yourself. You should have the clarity of mind. That's why I do Onkar more religiously, more Onkar. It will not give you clarity only in acupuncture, it will give you clarity everywhere, all over the world. What is yang? Functions of yang. Page number 3, BG meridian. To start new, diversify, modify, convert, transfigure,
transform, transmute are functions of yang. Yang is the first force separated from Wuji, a disturbance bound by time and space under influence of responsive force. The yin and desires change without sense of responsibility. In fact, Yang Qi has only one point agenda. What is it? Change. There is no sense of direction. Where is the question of opposite flow and normal flow? It doesn't have any direction. It can go downwards, it can go upwards. It is me only who is trying to explain because I have to explain to you the chi. Chinese are not interested in that. They have not known it. In fact, if they listen to me now, then they can probably think more. But they are not coming to learn from me. You are muted, Shiva. You are not, I'm not able to hear you. You are speaking, but I can't hear you. Please unmute. And Yes, then, sir. right? Similarly, Yes, sir. Yes, sir. they don't have anything to do with the yin meridians. They don't have anything to do with horizontal meridians. They don't have. What is yin? So yang does not have any desire. Yang does not have any responsibility. Yang does not have any sense of direction. Yang Qi has nothing of these. So if there is no direction, where is the question of opposite flow and normal flow? It is only my game plan because I have to find out the Qi. Qi will have direction. Qi will have responsibility. Qi will have desires. If you get into this, you will be in the vicious circle. You will be makde ka jal, spider's web you will be making. Don't get into this. I have to do it. Why? Because I want to evolve out of this data, whatever is there. How your chi will behave. Yang can be anywhere, but chi has to be there. Chi must have a direction. So chi can go in normal flow and chi can go in opposite flow. This opposite flow, of course, I shall explain. Don't worry, all of you, because you may not know what is opposite flow. I shall explain it a little later. This man is an old man. So he has this question and he has done so much of exercise, futile exercise in explaining BG meridians. So he is a frustrated person in that. I should say. Where is the question of direction, opposite flow, normal flow? For yang, for yin. What is yin? Functions of yin. To finish, hold fast, stand, clinch, maintain, sustain, stabilize, similarity are functions of yin. Movement and no movement, no directions. Who has the direction? Chi has the direction. We are bothered only about chi. We are not bothered about yang and yin. Only yang and yin we should know that if you are sedating cold, you are tonifying heat. That is physics. Still, it is not acupuncture. Right? Hmm? Like the other way. So there are so many things, so many factors in evolving thing. Directions come into play only when we talk of chi. And what I have said? I have said the Chinese meridians are not the meridians of chi. It is only yang component of the real chi. Real chi means what? True chi. The true chi is what? The chi by virtue of which all movements are possible. All functions are possible. Yang is only a component. So Chinese, what they have done, they have only found a component. Isn't it? What they said? Liver does not generate yin chi even for itself. Just look at it. What a thoughts. What do they mean? Every organ
There is a process going on. Every phase in itself, it is a process, but it is a different kind of a process. In fact, Parksab did a wonderful job. He only found out that evolution can be of two varieties, cyclical and linear. Chinese even they didn't do it. It was not Chinese. It was Professor Park. ठीक है, अभी समझ में आ रही है? देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अपोजिट फ्लो, नॉर्मल फ्लो, नथिंग. इट इज ऑल माई गेम प्लान. It is Mishra ji who is thinking in terms. Why? Because I have to find out the resultant. The resultant can be in four different quadrants, all 360 degree. So all these fake things that vertical meridian, the chi flow is in this direction, then opposite can be on this direction. It is all my game plan. In order to find out that under what circumstances the chi will go where. Now I shall give you a solid concrete example. Now be very careful and listen to it. Suppose there is a point, any point, for example, suppose LU8. Now on LU8, the needle can be applied in different directions. I'm not talking about the meridians. I'm talking the needle can be applied in different directions. We call it sedation if it is against the flow of chi, normal flow, assumed flow of chi. Right? As I told you, that liver 8 is probably the most yang chi by liver, not liver 1, liver 2. Yesterday I talked about it. Did you get it? What does it mean? Liver 8 is yin. How can it be more yang? Have Chinese thought of it? Has anybody thought of it? मैं बड़ी बात बता रहा हूं. I am talking a very big thing. केतन भाई probably knows. लिवर 8 की ची ज्यादा यांग है लिवर 1 और लिवर 2 से. डू यू एग्री केतन भाई? अनम्यूट करिए. ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लीवर एट मोर यंग. हाँ, इसीलिए आपको बोला रिवाइज करने के लिए ना. फिर से आने के लिए क्यों बोला? क्योंकि आई हैव अपडेटेड. मैं तो अपडेट हो गया हूं अभी. पहले मैं भी यही समझता था जो आप समझ रहे हैं. लिवर ऑर्गन्स, लिवर मेरिडियन में ची कहां से जाती है? अभी हिंदी में बोलेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. लिवर मेरिडियन में ची कहां से आ रही है? केतन भाई, हम और आप बात करेंगे. लिवर हाँ हाँ सर, मेरिडियन में ची कहां से आ रही है? किडनी से. किसी भी मेरिडियन में ऑर्गन करस्पॉन्डिंग ऑर्गन से आ ऑर्गन रही है. ऑर्गन से आ रही, ऑर्गन से. हम ऑर्गन से ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं. हम ऑर्गन से मेरिडियन में ची की फ्लो बात कर रहे हैं. ऑर्गन से आ रही. लीवर ऑर्गन से लिवर मेरिडियन में ची आ रही है. ठीक है, एग्जैक्टली. हाँ. अब हम लोगों को लीवर 1 का पॉइंट उन्होंने कहा दिया? फुट में, बिग टो में. हम लोग खड़े कैसे होते हैं? नीचे से ऊपर. ग्राउंड लेवल है. लीवर 1 कहाँ है? ग्राउंड लेवल, धरती पे है पैर, फुट. है कि नहीं है? हाँ सर. ओके. ठीक है. अगर बीजी पॉस्चर बनाए, विच इज बेटर पॉस्चर आई थिंक, जो चाइनीज ने बताया था पॉस्चर ऐसा रख लीजिए, तो मेनी थिंग गेट अनएक्सप्लेन्ड. ये भी पता नहीं लगता है कि कहां से जा रही है, अर्थ से हेवन कैसे चीज जा रही है, ये भी उन्होंने नहीं बताया. उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया. लॉन्ग मेरिडियन में भी उन्होंने पॉइंट्स नहीं डाले. In fact, I don't want to criticize Chinese. What they did was only thing possible at that particular moment. People could not think of it. मेरे बाद में भी some people will come who will think better than me. वो मैं नहीं बोल रहा हूं कि I am the last word. ये भी नहीं मैं बोल रहा हूं. मैं इतना ही बोल रहा हूं कि कहां पर है? ग्राउंड लेवल में है. ग्राउंड लेवल में. और लीवर 1 का ब्रेन कौन है? GB44. जरा किसी को बोलो
वो ग्रुप में पूछ रहे हैं वो, अच्छा नहीं, अच्छा व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं। जस्ट वेट। लेट ज्वाइन करने से यही सब होता है। लक्ष्मी, हाँ आई हैव, हमने आपको ऐड किया है ना, आई हैव एडेड यू इन ईएवी बीजी मेरिडियन क्लास ग्रुप। हाँ वो ग्रुप, हाँ यही नंबर में आपको ये नंबर है या कौन सा नंबर है वो देखो आप। हाँ तो उसमें ज्वाइन करो ना, लिंक तो है उसमें, आई पुट द लिंक। ये दूसरा नंबर है क्या, वो दूसरा नंबर जोड़ा मैंने। तो पहले ये नंबर देना चाहिए, मैं जोड़ता हूँ इसको, रुको 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 रुको, आई शैल ऐड दिस नंबर 20994। अभी जुड़े हैं आप? हेलो, अभी अभी जोड़ दिया ना? अभी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे। अभी हमने आपको दिया लिंक फिर से। अभी ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। सॉरी, शी हैज ज्वाइन टुडे, न्यू न्यू पर्सन, शी मिस्ड द ट्रेन, लेट शी इज, नो प्रॉब्लम। सो मैं क्या कर रहा था केतन भाई, यस। सो केतन, लिवर से लिवर मेरिडियन कैसे आ रही है? फुट से इट इज कमिंग अप, इजंट इट? अगेंस्ट द ग्रेविटी इट इज कमिंग अप टू नी। अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रही है तो वो हल्की चीज है कि भारी है? हल्की कौन सी चीज ऊपर आएगी, हल्की चीज आएगी कि भारी चीज हल्की आएगी? हल्की चीज। हल्की चीज आएगी। नहीं तो इसके मतलब हल्की है तो यांग है ज्यादा कि यिन है? या Yeah. यांग है। लेकिन इसका नेचर कैसा है? ऊपर तो जाएगी लेकिन ये कंडेंस होकर के पहुंच रही है वहां, एंड दिस विल ट्राई टू स्टॉप द मूवमेंट, द मूवमेंट विल be reduced by the time it reaches lever 8, the process is ending। process means movement, प्रोसेस खत्म हो जा रहा लिवर एट के पास। ऐसी चीज है कि वहां पर लिवर की प्रोसेस जब खत्म होती है तो लिवर एट में जो प्रोसेस चल रहा है वो ज्यादा हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन साथ में नई बातें नहीं होंगी। अब जो हो रहा था वही होगी लगातार, मेटल, एंड फिर ड्राइनेस में आएगा, प्रोसेस विल फिनिश। लेकिन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, सो मोर यांग एंड देन कंडेंस एवरीथिंग। हमने एग्जांपल दिया था, ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स आर्टरीज में ब्लड चलता है हार्ट से निकल के, ब्लड गया ऊपर गया सिर में जाता है, सिर में जाने के बाद आर्टरीज है वहां पर जाकर क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है, साइनेप्सिस बन जाते हैं। और फिर जब ब्लड रिटर्न होता है वहां से तो नीचे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर मेरिडियन या स्टमक मेरिडियन या यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, व्हाट आर दे? UB1, GB1, स्टमक 1, चीज यांग और यिन? यांग। कंडेंस्ड है लेकिन यांग है। गर्म पानी है, भाप बन के गया, कैसे होता है वो, समुंदर से पानी ऊपर गया, यांग है तो ऊपर जा रहा ना, भाप। हाँ
ऊपर बादल बन जाता। बादल यांग है कि यिन है? ये ज्यादा यांग है, ऊपर गया। हल्का था तो गया ना बाप, वहां कंडेंस हो गया। दिस इज अ मिस्टीरियस मैकेनिज्म। यू हैव टू नो उपनिषद्स। द इंडियन विजडम ओनली कैन हेल्प। सबसे हल्का कौन है? आत्म तत्व। आत्म तत्व स्थिर है। आत्मा, आत्मा समझ सुना है कि नहीं उधर? आप लोग आत्मा, आत्मा वर्ड जानते हैं कुछ? आत्मा सुना है कुछ? आत्मा होता कुछ है? यस सर। हम लोग सारे भारतीय हैं भाई, आत्मा के हाँ विषय सर, हाँ सर। जानना चाहिए हम सब लोग को। बिल्कुल सुना है सर। हाँ। आत्मा स्थिर है कि चलायमान है? चला है आत्मा, मैम। आत्मा और परमात्मा एकदम स्थिर है। आप जो अभी हमने उस दिन इकबाल को एक एग्जाम्पल दिया था, 5 साल के थे तब आप इकबाल थे, और अभी 56 ईयर्स के हैं तो इकबाल है ना? आपको एग्जाम्पल दिया था हमने, इकबाल साहब। चेंज नहीं हो रहा भाई, वो नहीं चल रहा। बट दैट इज द मैक्सिमम यांग। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर तुमने किया है। व्हाट इज नंबर 9 एंड व्हाट इज नंबर 0? नंबर 9 is maximum yang, but that Atma Tattva is fixed, no movement. इतनी मिस्टीरियस बात, इतनी थ्योरी समझने के बाद तब ये बात आ गई क्या? इच्छी की मेरिडियन तो उन्होंने दी ही नहीं। तो लिवरेट क्या है? गया कंडेंस हो गया वहां। क्या कंडेंस हुआ? भाप कंडेंस हुआ, बहुत यांग है। अब वो चूंकि कंडेंस हो गया तो भारी हुआ, फिर से नीचे जाना शुरू करेगा। तो ब्लड स्टार्टेड कमिंग डाउन। ब्लड जब पहुंच गया और उसकी रास्ता उसका बंद हो गया, वहां पर एक्शन बंद हो गया, प्रोसेस ऑफ गोइंग ब्लड अप हैज कम टू ए स्टॉप। तो वहां साइनेप्सिस बन गए, और वो साइनेप्सिस से फिर वेन्स नीचे आना शुरू हुआ। ये तो भाई फिजियोलॉजी है, ब्लड सर्कुलेशन की किसी भी किताब में देख लो। आप किसी भी किताब में देख लीजिए, साइनेप्सिस बने हुए हैं। सर्कल ऑफ विलीस के ऊपर क्या है? साइनेप्सिस ही है ना। कैवर्नस, साइलस, ये साइनस, सारे साइनसेस हैं। हम्म। तो लीवर 8, SP9, K10, ये सब ब्रेन के, भयंकर ब्रेन में जब भी कुछ होगा, ऑल दिस। अब ये चीज कहाँ फ्लो कैसे करेगी? बिकॉज इट इट उस लेवल में यिन है, सो दिस विल फ्लो ओनली हॉरिजेंटली। किडनी हॉरिजेंटल मेरिडियन इज मस्ट बी यूज फॉर एनीथिंग इन द ब्रेन, if it is related to the memory, or if you want to imprint something which is not there. ये सब नई बातें हैं, पहले हमने नहीं बताया है। मैं पहले जो भी क्लास में आप आए होंगे उसके ऊपर की बात है अब, है ना? आप तो रिपीट कर रहे हैं ना, तो पहले तो ये बहुत बताया नहीं था, अभी फर्स्ट टाइम आपके लिए भी, फर्स्ट टाइम ही है, नया है। सर जस्ट टू लीवर 8, एसपी may I 9, talk, sir? LU5, K10, ये सब क्या है? वाटर पॉइंट है। लेकिन वाटर कौन सा वाटर है? वो वाटर है जो भाप बन के वापस कंडेंस हो गया। पहले भाप कैसे बना? लेटेंट हीट लगा। Change of phase has two kinds of heat flowing. One is obvious heat and the other is latent heat. भाप बनने के लिए भी लेटेंट हीट चाहिए, और वाटर से आइस बनने के लिए भी लेटेंट हीट चाहिए। एक में लेटेंट हीट को अंदर जाना पड़ेगा, और एक में लेटेंट हीट को बाहर आना पड़ेगा। तो रुके कैसे? हाउ द वेपर विल स्टॉप?
कंडेंस uh, कैसे होगा? हाउ and इट विल कंडेंस? Because of a different kind of a force which is known as adhesive force and cohesive force. There are two kinds of force of attraction, and there is another one which is known as surface tension. तीन तरह की फोर्स तो मॉडर्न फिजिक्स टॉक्स अबाउट इट। मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक विज्ञान है वो तीन तरह के अट्रैक्शंस की बात करता है। एक कोहेसिव फोर्स की बात करता है, एक एडहेसिव फोर्स की बात करता है, और एक सरफेस टेंशन की बात करता है। ये तीनों फोर्स अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं की कोई बात है जिससे कि वाटर वेपर वहां कंडेंस, यहां से समुंदर से पानी के भाप उठा और ऊपर जाके क्लाउड बन गया। क्लाउड क्या बना? मॉलिक्यूल्स केम टुगेदर। माने कहने का बात है कि जो यांग थी जिसने पानी को भाप बनाया, उससे ज्यादा फोर्स अब कौन सी है? कोहेसिव फोर्स है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स कमिंग टुगेदर। एक फोर्स है जो पानी के भाप को हल्का कर दिया, ऊपर जा रहा है, और दूसरा फोर्स है कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं भाप के, वो सिमिलर हैं और वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक और एग्जांपल हमने दिया था, अगर आपको याद हो, प्री बीजी में आपको दिया था। नहीं नहीं, प्री बीजी में बात की थी हमने, नहीं कब बात की थी, या भगवत गीता में शायद बात। हमने आपको प्रीबीजी। बताया था कि क्वांटम फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट था। एक स्लिट से जाता है तो पार्टिकल दिखता है, और दो स्लिट बना दिए, दोनों से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो दे एक्ट एज वेव। वेव को पार्टिकल कैसे दिखने लग गया? वेव्स है वो, उसको पार्टिकल जैसा दिख रहा है। ऑब्जर्वेटरी इफेक्ट दे कॉल्ड इट, विच दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन। मैं आपको जो बता रहा हूं एकदम सिंप्लीफाइड, इतना सिंपल करके कोई नहीं बताएगा। भाप ऊपर क्यों जा रहा है? शिवा, यू शुड ऑल्सो लिसन, नहीं तो यू विल ऑल्सो आस्क अगेन टुमारो। शिवा is gone. yes, sir. Water vapor is lighter and therefore yang, and it is going up, 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 up in the sky. Now there Yes, is sir. another force acting. What force? Cohesive force. Cohesive force. So it is What is cohesive concerned force? with. Cohesive force क्या है? Cohesive force है similar things, they get together, they have an attraction for each other. Similar molecules will have attraction for each other. तो अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भाप बन के, गर्म होके, छोटा होकर के वो भाप बन के नॉन सब्सटेंशियल बन के ऊपर जा रहा था, अभी वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स उनको आपस में दे वांट टू गेट अटैच्ड, देयरफॉर दे कंडेंस Yes, sir. एंड दे फॉर्म क्लाउड। उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरा फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यू गो टू द बुक्स एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे काम करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे बनती है, और ऑल दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेनेशन वो सब देते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन हमको वो जरूरत नहीं है, हमको क्या है? चाइनीज ज्ञान को भारतीय ज्ञान के लेंस से देख रहे हैं। हमने क्या कहा? ची कैसे बना है? मनस। ची कैसे बना? Waves are attracted, and the smallest waves, they are coming together making pockets of chi, small pockets, bundles of waves. And these bundles of wave, different kind of waves are coming together. So similar waves coming together, that is cohesive force. And two dissimilar chi particles, दोनों अलग अलग तरह के chi के पार्टिकल सामने पास में आ गए, उसको बोलते हैं adhesive force। ये इंडियन फिलोसफी है। ये किसकी फिलोसफी है? उपनिषद का ज्ञान है ये। हम मॉडर्न फिजिक्स की नहीं, हम अब तो अपने उपनिषद के हिसाब से देख रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये? साइनेप्सेस ऊपर जाके क्या बनने की जरूरत थी भाई? हर जगह तो आर्टरी से ब्लड जाता है, वेन्स से चला आता है, ऊपर ऐसा क्यों हुआ? नॉट ओनली दैट, आपकी पेरिफेरी में अगर आप चले जाइए तो वहां जाकर के सारे जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स बन जाते हैं। व्हाई दे गेट डिवाइडेड?
पेरिफेरल हार्ट कहते हैं उसको। सुना है पेरिफेरल हार्ट? इतनी ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं नहीं समझ लो काफी है। एक ही बात है, दो तरह के फोर्स हैं। एक फोर्स ने उसको हल्का जो था वो ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जाने के बाद लेकिन वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होने से एक दूसरे तरह का उसमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन भी आ गया। तो बिल्कुल ऊपर जाने के देयर इज एवरी चांस दैट दे विल गेट कंडेंस्ड, दे विल गेट टुगेदर। जब दे विल गेट टुगेदर मीन्स दे आर अरेस्टिंग द मूवमेंट, देयरफॉर दे आर कोल्ड, दे आर वाटर। भाप से क्लाउड बन गया तो वाटर हो गया ना, हॉटनेस से वाटर बन गया ना। हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। जोशी जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर। केतन भाई थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ सर, लेकिन बाद में बादल तो फिर यीन में ही ट्रांसफर हो जाते हैं ना, वो तो फिर से नहीं 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 नहीं, दे आर यंग ओनली। अभी वो काफी वहां से यंग है, जब वहां से नीचे चला, जब बादल में जो भाप बन के जो मॉलिक्यूल्स साथ में आए, वो जब नीचे चलने लगे तो वो ठंडा होने लगा। ठंडा होता गया, होता गया, होता गया, नीचे आते आते ओले बन जाते हैं कई बार तो। ओला गिरता है कि नहीं? बर्फ हाँ गिरता है सर। कि नहीं? हाँ। वो ये है, वो बर्फ गिरा है। GB44, GB43, ये सब क्या है? ठंडा हो गया। ऊपर से आया यान था, नीचे आते आते इन हो गया। फिर ऊपर गया, पूरा यांग है, ये यांग है। यांग हाँ में जाके क्लाउड बना है, ये क्लाउड इज यांग। लीवर 8 इज यांग, GB43 इज yin, दैट इज मोर yin, स्ट्रांग। नो मूवमेंट के लिए GB43 इज बेटर, नॉट लीवर 8। इसी बात में कंफ्यूजन किया था ना शिवा ने द अदर डे। कौन सा ज्यादा यीन होगा सर? लीवर 8 ज्यादा यीन होगा कि GB43 ज्यादा यीन होगा? दैट इज व्हाट ही आस्क्ड मी द अदर डे। शिवा ओनली आस्क्ड मी, कौन सा ज्यादा यीन होगा? जो क्लाउड बन गया ऊपर वो ज्यादा यीन है कि जो ओला गिरा जमीन पे वो ज्यादा यीन है? गोला, गोला। तो फिर उसका ज्यादा ताकत है ना, यीन फोर्स ज्यादा है। yin, it is more yang, that yin is more yang as compared to the yin in the brain. हम्म। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा बार बार इसको सुनने से, जो मैं बोल रहा हूं आज को, इसको 2 3 बार 4 बार सुनिएगा, समझ में आएगा। सर, सर एक क्वेश्चन था। अब तो लीवर सिरोसिस होगा तो GB43 में चले जाएंगे। लीवर सिरोसिस की बात हम करेंगे बाद में। लीवर सिरोसिस में लीवर हॉरिजेंटल में जाओ ना। हम्म। अरे काहे के लिए इधर उधर जा रहे हो? ये तो चाइनीज को पता ही नहीं था ना कि हम्म। लीवर बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा यिन बनाती है या बहुत ज्यादा यांग बनाती है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीवर। हम्म। लीवर बीच वाली चीज वेव्स कम बनाती है, वो या तो बहुत यांग बनाती है या बहुत यिन बनाती है। तो उनको यिन दिखाई नहीं, बहुत तगड़ा यिन बनाती है। K1 में जाओ ना, हाँ सर। लीवर सिरोसिस के लिए K1। लीवर हॉरिजेंटल मेरिडियन में लीवर वैरायटी की यिन ची है, एम आई राइट? हाँ सर। जो हमें, जो मूव कर रही है थोड़ा, अभी एकदम मूव नहीं करेगी, वो हमारे काम की नहीं है, हम्म। एसेंस हमारे काम की नहीं है। इट इज द ट्रू ची विच इज यूजफुल फॉर अस। लाइफ के लिए लाइफ के लिए ट्रू ची ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ एसेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। लाइफ एसेंस तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको भी लाइफ एसेंस रहता है।
हार्ट अटैक हो जाता है उसको भी, मर जाता है हार्ट अटैक से, लेकिन उसको लाइफ एसेंस तो रहता ही है, लेकिन ट्रूची नहीं है, खत्म। ट्रूची की फ्लो बंद हो गया, मूवमेंट बंद हो गया, मीन्स लाइफ गॉन। ये लाइफ के लिए भी हम लोगों को उपनिषद पढ़ना चाहिए। भारतीय ज्ञान के मुकाबले में मैं तो कहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि कोई दूसरा ज्ञान है। इफ देर इज एनी अदर फिलोसफी। बहुत से उपनिषद है, 108 उपनिषद है, देयर इज नॉट ओनली वन बुक, एंड एवरीथिंग हैज बीन क्वेश्चनड टाइम एंड अगेन। सारी चीजों पे सवाल जवाब बहुत हुआ है। मैं आजकल भगवत गीता की चर्चा कर रहा हूं अलग एक ग्रुप में, और उसके लिए मैं काफी पढ़ता हूं। और वैसे भी हम ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर ये बातें होती हैं ज्ञान की। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि लीवर 8 और GB43 में डिफरेंस है। कौन ज्यादा यांग है, किसमें मूवमेंट रोकने की ताकत किसमें ज्यादा है? GB43 की चीज है। K1 और लीवर 8 एक ही स्टेटस है। लीवर 8 इज इन द वर्टिकल मेरिडियन एंड K1 इज इन द हॉरिजेंटल मेरिडियन। दोनों कोल्डनेस पॉइंट है, लीवर की ही पॉइंट है। यहां हो सकता है K1 में भी जाकर के the process is finishing, horizontal process. What are channels? Do you know what is channel? Channel is a process. Channel is a process. ट्यूब नहीं है, पाइप नहीं है, इट इज ए प्रोसेस। चल के एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये प्रोसेस है ना। प्रोसेस कम्स टू एन एंड एट K1, horizontal process, and process comes to an end at लीवर 8, vertical process. Which one is more in? K1 is more in horizontal direction. Vertical direction, it becomes yang, it becomes wind of cold, wind of water. पानी में भी विंड हो सकता है। पानी मतलब पानी नहीं, पानी मीन्स डेड, डेथ। Yes, sir. चाइनीज में वाटर मीन्स डेथ, हमारे यहाँ वाटर मीन्स लाइफ। इतनी गहराई से हमने भी नहीं देखा था, और चाइनीज ने तो नहीं ही देखा था। Yes. And I am sharing it with my students only, those who have come to this class. उपनिषदों को पढ़ने वाले एक हमारे पास ये हैं, डॉक्टर साहब आप हैं क्या, डॉक्टर वार्ष्णेय? आर यू देयर? डॉक्टर वार्ष्णेय इज नॉट देयर, मे बी ही इज ट्रैवलिंग। मैं मैं बोलिए शिवा। sir, sir, I understand, sir, like from vertical meridian is yang dominated, horizontal meridian is yin dominated, वेरी गुड, and ये तो हमने पहले भी I बताया। roughly हाँ। understand, sir. हम्म क्या? एज यू अंडरस्टैंड Uh, व्हाट? sir, like sir, like the question comes to my mind, or which is not clearly say, like of course in each phase two forces are required. Like if we take phase one, like say in vertical meridian, you are mapping with the wind with the dryness. Similarly, like you are नहीं, mapping मैं for क्या each कह रहा हूं, phase मैं in शिवा, vertical मैं क्या meridian. कह रहा हूं? So सपोज, similarly, there is नहीं नहीं, a two शिवा force. शिवा, व्हाट इज ए ह्यूमन बॉडी? Sorry. ह्यूमन बॉडी की डेफिनेशन क्या है? क्या क्षेत्र है, विच रीजन यू कॉल एट ह्यूमन बॉडी? It's मनुष्य शरीर की chi. परिभाषा क्या है? व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन अ ह्यूमन बीइंग?
Human being is body plus mind. If mind is not there, you are not a full human being. If body is not there, you are not a full human being. Right? Yes, sir. Does it help you? You have to have vertical meridians, you have to have horizontal meridians, but they are components of the reality. In reality, Yes. whatever is life is governed by chi only. It is manifestation of chi. The movement is only because of chi. Useful movement has to be chi. Yes, if something has to pop out, that may be more of yang, but ultimately, if it is more of yang, and if you may not be able to perceive unless there is a yin. आपका you are born in a little baby and now you are growing. आपका height बढ़ रहा है, width बढ़ रहा है, thickness बढ़ रही है, hands are getting elongated. Why does it stop here? Why your height stops here? Why your breath stops here? कौन है वो रोकने वाला? इकबाल जी, आप भी थोड़ा सोचिए। आखिर आपकी हाइट मान लो 5 फीट 7 इंच है या 8 इंच है, क्यों रुक गई? इसके ऊपर क्यों नहीं गई? अरे क्वेश्चन करो। जैसे शिवा इज ओनली क्वेश्चनिंग फॉर क्वेश्चन सेक, एक्यूपंक्चर से कुछ लेना देना नहीं इसका। मैं बोल रहा हूं आपकी हाइट ईद क्यों? ने रोक दिया उसको, ईद ने रोक दिया उसको। नहीं नहीं, दो तरह के फोर्सेस है ना, एवोल्यूशन। अब देखो, एक फूल है, पौधे को देखो आप, पौधे में यू हैव ए बड, फ्लावर का कली, फ्लावर आ गया, उसमें से बीज आ गया, उसमें से एक कली निकल गई, कली से फिर फ्लावर हो गया, और फ्लावर से फिर फ्रूट हो गया। उसके बाद व्हाई डिडंट इट ग्रो? वो क्यों नहीं, और ज्यादा क्यों नहीं evolve हो रहा है, evolve हो रहा है? That is the maximum capacity. Why it is maximum? Who has stopped it? Which it has stopped it because there are two forces. That's what I am explaining. ऊपर जा रहा because it is getting lighter, more yang. Then suddenly these similar molecules, they try to come together because they are similar. Same things, they get attracted, and there is for example, it is a cohesive force. So cohesive force is trying to bring those molecules which are very light and hot together. So the clouds are formed, which is very young. ये simple words में है, and cloud formation, you can go to the physics book and find out how the clouds make up. Sir, we can map like a cloud formation is like a latent heat, and say groundwater heat is say like we can mark it as like for example heat. There is a Nothing difference. ground, nothing. आप इतना क्यों कर रहे हो? आप एक ही बात समझो ना, yang है ना, yang will go up, isn't it? Who Yes, will sir. go up? Yang will go up or yin will go up? Yang will go up. No, yang is going. Why the hell liver 8 is at knee level and liver 1 is at toe level? Why? Sir, Liver you are 1, seeing the like from the chi is not. gravitational force you are talking. नहीं, ये कली है। कली से चलते पूरा फूल फ्लावर और उसके बाद फ्रूट बन गया, लिवर 8। फुल एवोल्यूशन। एक छोटा बच्चा है, वो विंड में है, बच्चे की क्या है एनर्जी? वुड फेज में विंड। Yes, sir. Is he fully wind when he is only 1 day old? He can't move. He becomes more yang. He moves, he starts moving. एक समय आ जाता है कि इतना erratic movements are all arrested. Why? Because similar friends, similar things are coming. He's getting attached, this, that, he's condensing. So full flowered childhood.
Wind evolves vertically from cold to hotness. Fire, water, Yes. that Yes, is sir. vertical evolution. ये दिखाया था ना हमने आप Vertical level 1 and evolution. level 2 में we have done it Yes, number sir. of times. Yes, sir. Yes, sir. These are all very clear, So sir. full flowering is Now, cold of what? Yin, because it's not alone. Yang is never alone. And there are so yes, many sir. kinds of forces. It's not only yin yang, what you are thinking in the terms of vertical and horizontal. No, 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 no. There are forces which are disruptive. There are forces which are bringing together attachments. So cohesive force means what? Cohesive force, you know, you are a student of physics. What is cohesive force? Yes, sir. Things coming Bonding together. force. It is like coming together. Yes, sir. There's something like that. I don't know exactly. I don't know exactly. Yes, sir. But Yes, something like yes, that. sir. Like, Something like that. That's yes, sir. why the cloud formation. Why? What is this cohesive force? How this is generated? Go to the Yes. physics book and read it. I am not here to teach you physics. But yes, I am a student of No, sir, physics. no, sir. That is I not my know question physics. also. Sir, I am just, yes. Yes, sir. Sir, my thinking is related to the treatment point of view, sir. Because, see, finally, like, why we have to learn horizontal meridian? Why we have to learn BG meridian? Because we need to apply it. Then only you can see the result. Arre, Sir, Shiva, this so, say, for example, if I want to, I have not come to the therapeutics at the moment. We are in the stage of forming the meridians. अभी तक यूज yes, बोला sir. नहीं है. So, Why are you taking the whole class away? You don't hijack the class. Don't try to no, hijack sir, no, the sir, no, sir. That is not my intention, sir. That is not आएगा my अपना टाइम intention. में आ जाएगा. जब टाइम होगा क्या यूज है वो देखेंगे. Okay, sir. Okay, sir. अभी एक ही बात रखो. वर्टिकल मेरिडियंस आर टेकिंग दी मोर यांग ची. Yes, sir. That is clear. Horizontal Yang chi in each meridians case. are not sufficiently yang. बच्चा जब तक sufficiently yang नहीं हो जाता खड़ा नहीं हो सकता. Yes. क्या इसमें सिंपल चीज है. इसमें क्यों दिमाग लगाने का. जब थेरेपेटिक्स की बात करेंगे देखेंगे क्या कब यूज करें किसको. अभी हमने बताया सिरोसिस में क्या करो. हॉरिजॉन्टल लिवर मेरिडियन यूज करो. K1. आई टोल्ड यू दैट. तो सर प्रोसेस के अंदर प्रोसेस सारे ही प्रोसेस है ना. वुड इज ऑल्सो हाँ द इनिशियल फेज. पहला फेज भी प्रोसेस है ना. बिल्कुल नो हाँ नो मूवमेंट, नो वुड, नो विंड, जीरो विंड टू मैक्सिमम विंड. जब हाँ मैक्सिमम विंड हो गया तो विंड विल स्टॉप. सो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फुल विंड दैट स्टॉप्स. द नेक्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ द फायर फेज स्टार्ट्स. इफ देयर आर 7 lobes, 6 lobes सपोज. अभी 6 ही समझो. मॉडर्न फिजिक्स ने मॉडर्न साइंस बोलती है 7 lobes. लिवर में 6 लोब है और 6 स्टेजेस हैं. लिवर में सारा काम हो रहा है. फर्स्ट स्टेज का काम जितने ब्लड का हो गया, दैट ब्लड passes टू द सेकंड स्टेज. वहां पर फायर वाला काम हो रहा है. थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज. जब पूरा काम हो गया प्रोसेस में, लिवर का प्रोसेस कम्स टू एन एंड, द ब्लड गोज टू हार्ट. अनदर प्रोसेस स्टार्ट्स. ये तो बात सिंपल है. क्यों इकबाल जी, ये बात समझ में आती है ना. लिवर में ब्लड सारा आ गया, उसमें प्रोसेस हो गया केमिकल, उसके बाद इट गोज टू हार्ट. वो प्रोसेस खत्म हो गया. लिवर वाला प्रोसेस शुरू हुआ और बढ़ते 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 पूरा प्रोसेस हो गया जैसा तैयार होना चाहिए. फिनिश्ड प्रोडक्ट. नाउ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कोल्ड, इजंट इट? The end of the process is always cold, isn't it? हाँ तो क्लाउड वाला जो एग्जांपल आपने दिया, अरे क्लाउड वाला नहीं भाई, गली गली में यही एग्जांपल है. हाँ नहीं मतलब अपन वो टॉपिक में बात कर रहे, वो तो समझ गया. वो प्रोसेस खत्म कण होकर के कण में यही हो रहा है. कण कण में यही हो रहा है. मान कण कण में यही हो रहा है. फ्लावर हो जाता है और खत्म हो जाता लाइफ. फ्लावर हो जाता है, खत्म हो जाता लाइफ. आम के पेड़ में आम लगता है, फिर पक जाता है, पक के गिर के सड़ जाता है, खत्म हो जाता है. आपको एसेंस मिली है,
उसमें से ट्रू ची निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। जितना निकलने की कैपेसिटी उतनी ही निकलेगी ना। आप कितना भी आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहोगे, यू कैन नॉट। देयर इज अ कैपेसिटी फॉर द होल ऑर्गन ऑल्सो। उसकी जितनी कैपेसिटी उतनी करेगी। हर तरफ से देखना पड़ेगा। अभी हमने आपको दो चीजें बताई। एक हमने ये बताया कि द यांग फोर्स इज टेकिंग द ची अप अगेंस्ट द ग्रेविटी, या पैर से लेके सिर तक जा रहा है। आजकल कितना झमेला है जातिवाद का। अपने यहाँ कितना चल रहा है, सेक्युलरिज्म, कास्टिज्म, पैदा ब्रिंग ए सर्टिफिकेट, यू आर ओबीसी, यू आर एसटी, यू आर एससी। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलो। चल रहा है ना। क्यों चल रहा है? क्या है रिजर्वेशन? पैर का रिजर्वेशन कर दो, you will start working like brain from today. So the legs will become brain and the brain will become foot. रिजर्वेशन करके आप उसको हेड बना सकते हैं, लेकिन हेड नहीं बना सकते। वो अपने आप ही बनेगा। हेड लेग होगा, लेग हेड होगा, ये सब अपने आप होगा। क्या है? क्या ए पर्सन विथ अ लिटिल विजडम हैज टू अंडरस्टैंड। मां के गर्भ में लेफ्ट किडनी पहले बन जाती है, राइट किडनी बाद में बनती है। साले रिजर्वेशन करो साले, रिजर्वेशन कर दीजिए आप। पहले राइट किडनी बनेगी, बाद में लेफ्ट किडनी बनेगी। चलो चलो चलो, रिजर्वेशन करो। करो भाई, कर दो रिजर्वेशन। नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन स्टॉप द मूवमेंट एंड you can open the pathways for the movement. What do you want? If you want to be healthy and happy, the natural movement should be free. If there is a free circulation of chi, you will be happy and healthy. जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती means reservation, you will be always unhappy and turmoil you will face. This is the basic philosophy. Chinese का भी है। Even Chinese दो आ गया। there are two branches in the Chinese. लेवल 1 में आना चाहिए ये सब सीखने के लिए। हिस्ट्री ऑफ एक्यूपंक्चर। व्हाट दे सेड, यू विल बी हैप्पी if you are in harmony with the nature. That is one branch. The other branch said, if you want to be happy, you have to be in harmony with the society. In fact, both the things are necessary. The cohesive force and the force taking it up to the end of the process, both are necessary. एक ही को लेके चले तो नहीं होगा। Like we have Upanishads, Chinese had acupuncture. वो भी फिलोसफी ही है। Acupuncture is only philosophy only executed. चलो, anything else? डॉक्टर वार्ष्णेय आप आ गए क्या? डॉक्टर अपर्णा एंड डॉक्टर वार्ष्णेय, they are old students but they are busy. And Venkatesh Lu, she is also old. Sridhar, you are traveling? Yes, Okay. sir. Next 3 days. So you are in a hotel or some place or what? Hotel, sir. If you are alone, you can put on camera, no problem. Chalo. Okay. So enough of philosophy and enough of explanations. केतन भाई, और कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो अहेड विद व्हाट इज रेंटिंग। टुडे वी विल डिस्कस। शैल वी गो अहेड? Yes, sir.
हेलो। भी दिख रही स्क्रीन हमारी? कैन यू सी जी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? हाँ हाँ सर। सर। देखो, जब हम एक वर्टिकल नीडल डालते हैं, नाइदर टोनिफिकेशन नॉर सेडेशन, दैट इज नोन एज रेंटिंग। हेलो, ठीक समझ में आ रही है? तो होरेरी पॉइंट को हम लोगों ने कल भी देखा था, मैंने लास्ट क्लास में। अभी ये होरेरी पॉइंट को जब हम रेंट कर देते हैं तो ये होरेरी पॉइंट खुल जाता है। एनी पॉइंट व्हेन वी रेंट, any point when we rent, what happens at that particular point? The chi of same geometry, color, characteristics, that which can be accommodated at that particular point, that can come in, and the similar chi, if it can go to, there are pathways. Like lever 1 say pathway hai. There is a pathway which is leading to H9. Then there is a path joining to P9. Then there is chi can go to SP1. Then the chi can go to LU11 and chi can go to K1. This is horizontal lever meridian. And similarly vertical meridian. There are other points also where the chi of lever 1 can go. Where it can go, we will see it. But renting means all the path will be open for both directions, right? Receiving and giving out, depending on what is the treatment given at the other end. For example, if we tonify P9 and if we rent LI1, lever 1, then what will happen? The chi will flow from lever 1 to P9. But we can't afford to just keep on pulling chi from lever 1 to P9. Therefore, what we do, we tone P9 and we also tone lever 1. Then what will happen? More chi will come from lever organ to lever 1 and that will go to P9. So P9 will be directly connected through lever 1 to lever. And only this wind variety of chi will come. And that too of pericardium variety. So renting means you are opening all channels from that. So all connections are opened up. If you put a seed, अगर आप एक सीड डाल देते हैं वो भी रेंटिंग है? नहीं, अपना विजडम है उसका, ची को लेना चाहिए कि ची को देना चाहिए, वो अपने आप ही करता है. सो रेंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट procedure which opens up all the channels, all pathways, all possible pathways. ठीक है, समझ में आ रही है? रेंटिंग में अब हमने कई बातें बताई, होररी पॉइंट्स के बारे में एक बात बताई और रेंटिंग के लिए बात बताई. ठीक है, हेलो, रेंटिंग समझ में आ रही है? अच्छा, यांग हॉरिजेंटल मेरिडियन सबने बनाया था? इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू डू इट फॉर यू? हेलो, यांग हॉरिजेंटल मेरिडियंस में कुछ हमको बताना तो नहीं है? सब लोगों को आ गया? नहीं सर, हो गया था लास्ट क्लास में.
नहीं नहीं, हमने कहा था कि आप सब लोग ड्रॉ करिए अपने से, है ना? नहीं अगर कर सकते तो पूछना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था ची क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, टू components, yang chi and yin chi. Yang chi is going in the vertical meridians from earth level to the knee and elbow. तो बीजी की posture हमने आपको बताई, both your hands, toenails and fingernails, they are at the same level. This is BG meridian, right? So now we have ready horizontal meridians and also the vertical meridians, right? And the chi meridian can be, of course, it can be in any direction. It can be thousands and thousands of meridians are possible. But representative हमने क्या किया? Representative chi is there are 4 quadrants in a plane. एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट है, नहीं, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, and 270 to 360. So chi can be anywhere, depending on yang chi किधर है, किधर जा रही है, और yin chi किधर है, किधर जा रही है. Yin chi also can go any side, horizontal it can go right, it can go left, it can go back, it can go forth, it can go diagonally, horizontally the child can move anywhere, and vertically only yang will go. That is to say that above the ground, perpendicular to the ground, or more yang will go. तो यिन भी जा सकता है किसी भी तरफ, और यांग और यिन दोनों मिलकर जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी ची. हमारे बॉडी में ट्रंक में ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म है, राइट? When we are standing, the chi has to, in order for the chi to go to the legs, it has to go downwards. And in order for the chi to go to the head, it has to go upward, unless the body is parallel to earth. So our posture is very important when we go for treatment. When we go to treat a patient, remember the posture is important. If you want yin chi to be active, make your patient lie down and then treat. If you feel that yang is excess, you can make your patient stand or sit in a chair and then treat. हेलो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको यिन ची को कहीं से कहीं पहुंचाना है, बॉडी में ट्रीटमेंट करनी है, तो अच्छा होगा कि आप, वैसे तो आप कर सकते हैं किसी भी पोस्चर में, लेकिन अगर आपने उसको लिटा करके किया, पेशेंट को हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो हर जगह यिन ची की एक्सेस हो जाएगी, आराम से पहुंच सकता है. और अगर आप चाहते हैं कि यांग ही केवल जाए, यिन न जाए, यिन को रोकना है, तो अच्छा होगा कि पेशेंट को खड़े पोजीशन में या चेयर में बैठाल करके इलाज करें, या इलाज करने के बाद उसको बैठाल दें, या इलाज करने के बाद उसको बोल दें कि बेड में जाके लेट जाओ. यिन ची कैसे पहुंचेगी हर जगह? बेड में लेट जाना, तो आपने नीडल लगा दिया या सीट्स लगा दिए या आपने मैग्नेट्स लगा दिए, कलर लगा दिए. यिन ची को हमको इधर से उधर करना है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? आप जाइए और बेड में लेट जाइए. यू शुड बी हॉरिजॉन्टल. मेरी बात समझ में आ रही है रमेश जी? आ रही है, समझ में आ रही है सर. और अगर आपको यिन को रोकना है और यांग को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? खड़ा रखेंगे तो उसको, बैठे खड़ा रहिए रखते हैं या तो. खड़े रहिए या चलिए, या चलिए.
मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको पैरों में ऐसा दर्द है विच इज बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ यिन। क्या हो गया? एक्सेस ऑफ यिन है। क्या करना आपने? यिन को सेडेट कर दिया और क्या किया? यांग को बढ़ाया। उस पेशेंट को क्या बोलेंगे उपचार करने के बाद? 1 घंटे तक खड़ा आप रही लेटिए चलिए। मत। हाँ, या तो बैठे रहिए या खड़े रहिए या चलने का प्रयास करिए या पैर वैर को चलाइए। समझ में आ रही है? हाथ को चलाइए, पैर को चलाइए। और जिसका यीन चलाना है उसको क्या? आंख बंद कर लीजिए, बेड में लेट जाइए, न्यूज़पेपर भी मत पढ़िए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है? आधे घंटे खाली रख दो उसको बंद करके, ट्रीटमेंट के बाद जाने मत दो। एंड एज यू वांट यीन टू इंक्रीज और यीन डिक्रीज, यांग टू इंक्रीज और यांग टू डिक्रीज, 4 ही तरह के हो सकते ना। या तो यांग को घटाओ या बढ़ाओ, 2 हो गया। या यीन को घटाओ या बढ़ाओ, 4 ही हो सकता है। ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। कुछ भी डिजीज होने दो। और इंटेंशन का नीडल शुड बी द फर्स्ट नीडल। जो काम करना है उसका इंटेंशन जो है वो नीडल, फर्स्ट नीडल डालो। किसकी ट्रीटमेंट करनी है? यांग करना है, यिन करना है, क्या करना है? एंड अकॉर्डिंगली यू शुड आस्क योर पेशेंट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है? समझ में आ रही है? अब हम लोगों को मालूम पड़ गया कि 4 क्वाड्रेंट में है। कैसे होगा 4 क्वाड्रेंट में? मान लीजिए कि ये पॉइंट है, हमने अभी बताना शुरू किया था, उस टाइम बता नहीं पाए। एल्यूवेट है, जो हॉरिजेंटल भी चल सकती है, ची इधर चल सकती है, इधर चल सकती है, वर्टिकल चल सकती है, इधर चल सकती है, इधर। इधर इधर से करेंगे तो सेडेट होगा, इधर करेंगे तो टोन होगा लंग्स का। नहीं, और इधर ये भी है। कौन सा टोन होगा, कौन सा सेडेट, दैट वी विल सी। लेकिन वो हम लोग देखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने टोनिफिकेशन सेडेशन नहीं देखा है। लेकिन मान लीजिए कि एक हॉरिजेंटल मेरिडियन है, उसमें हम ची को चाहते हैं कि इधर जाए। और नॉर्मली लंग्स मेरिडियन में ची इधर जा रही है, और हम कह रहे हैं ची इधर भी जाए। तो जब ची इधर जाएगी और ये वर्टिकल में इधर जा रही है, तो जो रिजल्टेंट होगा किधर आएगी? ये क्वाड्रेंट में आएगी। और अगर हम हॉरिजेंटल ची को इधर भेजें तो कैसे किधर जाएगी? ये क्वाड्रेंट में आएगी। और अगर हम यहाँ पर सेडेट कर रहे हैं किसी पॉइंट को, तो ची इधर को आ रही है, और हम इधर हॉरिजेंटल में इधर भेज रहे हैं तो किधर को आएगी? इधर को आएगी। समझ में आ रही है? सो ची हमारा किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट 90 डिग्री पे हैं, तो वर्टिकल जो मेरिडियंस चाइनीज के हैं उससे जो हॉरिजेंटल है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फ्लो। किसी भी लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे फुट लेवल, सेकंड लेवल जहां पर fingers and toes are connected to foot and hand. Third level is wrist and ankle joint. Fourth level is between knee and ankle joint or elbow and wrist joint. And the last level is knee level or elbow level. हर जगह हम कर सकते हैं काम। ठीक। और ची को हमको देखना है, टोटल ची कहां रिक्वायरमेंट है? टोटल ची इज एक्चुअली द हेल्थ। इट इज ची विच इज लाइफ। नहीं, और उसमें भी मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट के लिए याद। सो अगर यिन ज्यादा हो गए तो डेथ है। नो मूवमेंट, नो मूवमेंट इज नो लाइफ। मूवमेंट इज लाइफ। राइट? अभी हम लोगों ने देख लिया हॉरिजेंटल कैसे चलता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ची कैसे किधर से किधर चलती है। टोनिफिकेशन, ची की टोनिफिकेशन।
लेट अस सी टोनिफिकेशन क्या है। टोनिफिकेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ची का कैसे हो रहा है? मेरिडियन से हो रहा है। सारे फंक्शन के लिए, किसी भी प्रकार का बॉडी या माइंड के फंक्शन के लिए ची कहाँ से हमको लेना पड़ता है? मेरिडियन से मिलता है। सारे प्रकार के फंक्शंस के लिए ची कहाँ से लेते हैं? कहाँ से मिलेगा? चाहे माइंड का फंक्शन हो, चाहे बॉडी का फंक्शन हो, कहाँ से चाहिए? मेरिडियन से चाहिए। तो किसी भी पॉइंट के को टोन करने का मतलब क्या है और सेडेट करने का मतलब क्या है? दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। तो टोनिफिकेशन का मतलब क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, ची को हम बोलते हैं टोन हो गया। मीनिंग देयर बाय, इफ द ची इज मेड टू फ्लो फ्रॉम organ to meridian, इसको हम लोग टोनिफिकेशन बोलते हैं। कैसे करते हैं? अगर कोई मेरिडियन है, सपोज इफ दिस इज ए मेरिडियन, अगर ये मेरिडियन है और इसके ऊपर समझिए ये पॉइंट है, ये मेरिडियन जुड़ी हुई है किससे? ये मेरिडियन अपने ऑर्गन से जुड़ी हुई है। ये ऑर्गन से ये मेरिडियन जुड़ी हुई। अगर हमने इस पॉइंट पर नीडल लगाया, अगर हम इस डायरेक्शन में नीडल लगाते हैं, और मेरिडियन में नॉर्मल फ्लो ची की कैसे है? ऑर्गन से इस तरफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ची ऑर्गन से मेरिडियन में जाएगी।
ऑर्गन से मेरिडियन बने अलोंग दी फ्लो अगर हमने नीडल लगाया या बार मैग्नेट लगाया या कुछ भी लगाया तो दिस इज नोन एज टोनिफिकेशन ऑफ ची। दूसरा है if the chi at any point is made to spread out, ये भी टोनिफिकेशन है। ये बहुत छोटा हो रहा है ना, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत सही। ये ठीक है कि ये ठीक है? ये ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है अभी हेमंत? हाँ जी सर। तो पहला तो ये, इसको टोनिफिकेशन कहते हैं। दूसरा टोनिफिकेशन ये भी हो सकता है। इसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं पर मान लो ची है किसी भी एक्यू पॉइंट पे, तो अगर एक्यू पॉइंट पे हम लोग एक मान लो ऐसा है, अगर एक ऐसा मान लीजिए चक्रा मैग्नेट है, ये रेड है, ये ब्लू है, इसमें अगर फ्लो, या इसको येलो कर दो, है ना, इसको व्हाइट करो, टोनिफिकेशन करना है ना आपको। ये व्हाइट है और ये रिंग येलो है। अभी ची कैसे फ्लो करती है? व्हाइट से येलो की तरफ। तो अगर हमने किसी भी पॉइंट पर इस तरह का मैग्नेट लगा दिया, तो ची किधर से किधर है? ची को हमेशा ग्रीन रखो। ये भी हम लोग जानते हैं कि ये भी ची टोनिफिकेशन है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे हमने ऐसा लगा दिया चक्रा मैग्नेट कि ची जो है व्हाइट से, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो व्हाइट से येलो की तरफ चल रही है। तो ची इस पॉइंट पर जो एक्युमुलेट है, जो जमा है, वो ची को हम चारों तरफ फैला रहे हैं, स्प्रेडिंग। इसको भी टोनिफिकेशन कहते हैं। माने ये ची अगर मान लो पहुंच रही थी हमारे
फेस तक पहुंच रही थी और उसी को ठेल करके हमने आंखों में पहुंचा दिया तो टोनिफिकेशन हो गई। ठीक है। तो जितनी दूर तक जाएगा, अगर कोई चीज जितनी दूर तक जा रही है उससे और ज्यादा दूर तक उसको भेज दिया तो उसको भी हम टोनिफिकेशन कहते हैं। एक और प्रकार का टोनिफिकेशन है, क्या है? ची when it is transferred, sorry, from previous या लोअर फेज कह सकते हैं, फेज टू नेक्स्ट फेज। ये भी टोनिफिकेशन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक मेरिडियन है यहाँ, मान लीजिए एक मेरिडियन यहाँ है और फिर उसके बाद एक मेरिडियन यहाँ है, एक मेरिडियन यहाँ है, एक मेरिडियन यहाँ है और एक मेरिडियन यहाँ। मान लीजिए ये मेरिडियंस है और एक जनरेटिंग साइकिल के हिसाब से है। कहने का मतलब ये है कि इफ ये मान लीजिए कि लिवर मेरिडियन है, ये मान लीजिए कि हार्ट मेरिडियन है, ये मान लो कि पेरिकार्डियम है, ये स्प्लीन है, या इसको हार्ट कर दो, हार्ट मेरिडियन। नहीं, इसको स्प्लीन करो, सॉरी, एस पी और इसको लंग्स किया, ये लंग्स मेरिडियन है,
और ये कौन सी मेरिडियन होगी? किडनी होगी। लंग्स मेरिडियन है। अगर ये लिवर की ची को हम हार्ट में भेज दें, अगर यहां की ची, इफ द लिवर्स ची इज सेंट टू हार्ट, तो ये लिवर फेज उड है, उड से फायर फेज में जा रही है कि नहीं जा रही? तो लोअर फेज से, प्रीवियस फेज से नेक्स्ट फेज में, हायर फेज में जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो ची है वो टोन हो गई। सो ट्रांसफर ऑफ ची फ्रॉम लोअर फेज टू हायर फेज और प्रीवियस फेज टू नेक्स्ट फेज इन द जेनरेटिंग साइकिल, उसको भी हम टोनिफिकेशन कहते हैं। या अगर हार्ट से स्प्लीन में भेज दें, या हार्ट या पेरिकार्डियम, दोनों समझो, या इसी तरह से अगर मान लो लंग्स की ची को हम किडनी में भेज दें, तो ये भी टोनिफिकेशन है। अब एक सवाल आपसे ये है कि अगर किडनी की ची को लिवर में भेजे तो क्या होगा? या जो हमारा ये साइकिल है, नहीं साइकिल है ना हमारा, ये जनरेटिंग साइकिल है, लीवर माने वॉट, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, वाटर के बाद कौन सा फेज आता है? वाटर के बाद कौन सा फेज आएगा? वुड वुड आएगा। वुड सो आफ्टर दिस द अगेन इफ यू सी, ये पूरा यहां से फिर यहीं आएगा, isn't it? हेलो? तो किडनी के बाद वाटर फेज के बाद दूसरा प्रोसेस चालू होगा, फिर से वुड आएगा, यहां पर प्रोसेस रुका। अब तो अगर ये किडनी जो लास्ट जो फेज फिनिश हो गया, अगर यहां की ची को हम वापस नेक्स्ट फिर से लिवर में भेजे, तो ये टोनिफिकेशन होगा कि सेडेशन होगा? ये बात आपसे पूछनी है।
किडनी मेरिडियन से ची को अगर वापस लीवर में भेजा तो वो ची को टोनिफिकेशन कहेंगे। वो उस ची की टोनिफिकेशन हुई है कि सिडेशन हुई? वो इसलिए टोनिफिकेशन हुई क्योंकि जेनरेटिंग साइकिल में हमारी एक साइकिल है। नहीं, कैसे चलती है वो? वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, फिर से वुड फायर मेटल वाटर, वुड फायर मेटल वाटर, ये चलती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं बनाऊं इसको फिर से दूसरे पेज में? हेलो, सब लोग हैं कि चले गए? है तो। अगर हम लोगों को मालूम है कि एक जेनरेटिंग साइकिल है, नहीं, ऐसे वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, फिर से वुड फायर मेटल वाटर, ऐसे चलता है। ठीक है ना? तो ये जितनी हम लोगों ने कल एक बार हम लोगों ने देखा था, अ, ये दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा खाली है? आपका स्क्रीन ना। नहीं दिख रहा है, अच्छा। ओके, वेट फॉर इट, स्टॉप। ये चार्ट कल श्रीधर ने भेजा था। लेट अस आस्क यू, ये मान लीजिए कि हॉरिजेंटल मेरिडियन लीवर की है। ये यहां से यहां गई, फिर यहां गई, पेरिकार्डियम मेरिडियन से फिर स्प्लीन मेरिडियन, फिर स्प्लीन से लंग्स मेरिडियन, फिर लंग्स से किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन के बाद वापस कहाँ जाएगी? ये कौन सी मेरिडियन आएगी इसके बाद? इसके बाद फिर से लीवर लीवर में, मेरिडियन आएगी। लीवर में। समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि साइक्लिकल है ये वर्टिकल है, नहीं, और ये साइक्लिकल है। तो ये सब सर्कुलेशन में है। मतलब किडनी के बाद अगर और इसको बढ़ाना है, हमें इसको आगे को बढ़ाना है, प्रोसेस को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहां पर मूवमेंट रुक रहा है, दिस मूवमेंट विल हैव टू बी has to be started, and in order for this to start again, this has to become and behave like wood phase, wind phase। जहां से भी हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जहां से भी प्रेस प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं हम? बोलते हैं। विंड कहते हैं, वुड फेज प्रोसेस। मान लो हमारा स्टार्ट होता है sp3 से। अगर हम यहां पर हैं, इस एज ग्रुप में हैं, और यहां पर हम कुछ नया काम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये विंड बोलते हैं। कहलाएगा, वुड कहलाएगा। ये है ह्यूमिडिटी का पॉइंट। लेकिन अगर प्रोसेस यहां से हम नया शुरू कर दें, विंड शुरू कर दें, इसको इसको हम विंड, तो ये क्या करो, ये विंड के जैसी काम करना पड़ेगा इसको, इजंट इट? हेलो, लॉन्ग मेरिडियन में भी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी चीज किसी दूसरे के रिलेटिव, उसके संबंध से काम, जैसे लंग्स की ची, या जब स्प्लीन के सामने, स्प्लीन के साथ में इंटरैक्ट करती है, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये इतने पॉइंट हमारे पास हैं, ये मैट्रिक्स है। जिस भी पॉइंट को हमको प्रोसेस करना है, मान लो एक चीज जो हमारे ब्रेन में पहुंच गई हार्ट की,
हार्ट की ची ब्रेन में पहुंच गई, उस ची को हमें ट्रीटमेंट करना है, उस ची की, क्योंकि ट्रीटमेंट किसकी होती है? ट्रीटमेंट ची की होती है। अगर हमको इसको ही ची को नया नया प्रोसेस में डालना है तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस वी विल ट्रीट टेक एज विंड। तो ची यहां से शुरू होगी तो यहां विंड है, यहां से शुरू होगी तो यहां। लेकिन याद रहे कि जो भी मूवमेंट होगा वो किसका होगा? ची का होगा। ची कैसा है? ची रिजल्टेंट है, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है और एक ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट दोनों में अगर हम देखें, नहीं, तो क्या होगा? बीच से ये ची चलेगी ऐसे लाइन, रिजल्टेंट। हाँ, डायगोनल। डायगोनल। हाँ, रिजल्टेंट हम कहाँ से ले सकते हैं? लीवर वन से ची, जो रिजल्टेंट ची चलेगी, किसकी किसकी रिजल्टेंट? एक कंपोनेंट है लीवर वन से लीवर टू, और एक फोर्स है लीवर वन से H9। इन दोनों की रिजल्टेंट जो आएगी वो कहाँ जाएगी? रियल मूवमेंट H8। जो होगा वो लीवर वन से H8 पे होगा। तो ये लीवर वन की ची अगर H8 पे चली जा रही है तो ये टोनिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ। फर्स्ट फेज टोनिफिकेशन। से सेकंड फेज में चली जा रही है, ये टोनिफिकेशन हुआ ची का। और यहां से अगर यहां चली जाए, यही H8 से P6, ये भी टोनिफिकेशन है। P6 से sp3 हुआ, ये भी टोनिफिकेशन है। sp3 से LU8 हुआ, ये भी टोनिफिकेशन है कि नहीं? तो एनी ची विच इज गोइंग फ्रॉम लीवर टू हार्ट इज और पेरिकार्डियम, ये फायर है दोनों एक ही डायरेक्शन में, दिस विल बी टोनिफाइड। दिस इज नोन एज टोनिफिकेशन, फर्स्ट फेज टू सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज से थर्ड फेज में जाएगी तो उसको भी टोनिफिकेशन कहेंगे। तो ये हमको टोनिफिकेशन की डेफिनेशन अगर आ गई तो सेडेशन की भी डेफिनेशन आ जाएगी। इसी का उल्टा कर देंगे तो सेडेशन हो गया। हेलो, इसी का उल्टा अगर कर दें तो सेडेशन हो गया। ची मेड टू फ्लो फ्रॉम ऑर्गन टू मेरिडियन अगर हम कर रहे हैं टोनिफिकेशन है। तो अगर हम किसी मेरिडियन में सेडेशन कर दें, मतलब हम क्या कर दें कि अगर, ऑर्गन में फ्लो। हाँ, ऑर्गन में भेज दें। अगर हम यहां लगा दें ऐसे, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। आया। अगर हम नीडल को ऐसे लगाया था तो टोनिफिकेशन था, और ऐसे लगा दे तो सेडेशन है, isn't it? माने ची एक्चुअल में इधर से इधर फ्लो कर रही है और हम अगेंस्ट दी फ्लो लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ची इज गोइंग फ्रॉम मेरिडियन टू ऑर्गन। अगर ऑर्गन से मेरिडियन में ले रहे थे तो टोनिफिकेशन था, और अगर मेरिडियन से ऑर्गन में ले रहे तो सेडेशन है। शुड आई राइट इट? और ये तो क्लियर है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ रही ना? सेकेंड वाला भी टोनिफिकेशन, इसका उल्टा करो तो क्या होगा? इसको येलो रखो और इसको व्हाइट रखो तो क्या होगा? अंदर की तरफ सारी चीज आएगी, इजंट इट? इसको मान लो येलो रखा और इसको रखा व्हाइट रखा, तो ये क्या हो जाएगा?
ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे होगा तो क्या होगा? अब ये सेडिश बाहर की चीज अंदर की तरफ आ रही है, किसी भी पॉइंट पे सारी चीज सिमट करके उस पॉइंट पे जा रही है। इसको क्या बोलते हैं? सेडेशन। इसको क्या बोलेंगे? सेडेशन। तो जो हम यहां कर रहे हैं उसका उल्टा करें तो सेडेशन होगा। इसके मतलब क्या होगा? मेरिडियंस में अगर हमने हार्ट की ची को लिवर में भेजा तो सेडेशन, ठीक है। और अगर हमने किडनी की ची को लंग्स में भेजा तो सेडेशन, और लंग्स की ची को स्प्लीन में भेजा तो सेडेशन। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बाबू आपको बात? सिंपल है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। अगर हमने लंग्स की ची को स्प्लीन की तरफ भेज दिया तो ये सेडेशन होगा कि टोनिफिकेशन होगा भाई? सेडेशन होगा। ये सिंपल बात है, इसमें कुछ खास सोचने समझने की बात नहीं। ये सेडेशन है, ये टोनिफिकेशन है। ये टोन है। सेडेशन। बड़ा करते हैं थोड़ा सा तो दिखेगा। वी कहाँ से आ गया? ये सेडेशन है, ये टोनिफिकेशन है। एक और बात ध्यान देने वाली है क्या, कि लिवर की मेरिडियन हमारे शरीर में कहाँ है? हमारे शरीर में लिवर की मेरिडियन कहाँ है? हाथ में है। नहीं? डॉक्टर वार्ष्णेय आप हैं क्या? आप पेज नंबर 65, सबके जिनके पास किताब है, बीजी मेरिडियन, पेज नंबर 65। यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है लेग और हैंड का। नहीं? सर एक मिनट, स्क्रीन पे जो आपने ये दिखा करके रखा है किडनी से लीवर, वो तो जाएगा लीवर से किडनी सेडेशन में। नहीं, लिवर से हार्ट, हार्ट से स्प्लीन, स्प्लीन से लंग्स और किडनी, अगर इस तरह जा रहा तो ये टोन हो रहा है।
लेकिन जब किडनी पे प्रोसेस स्टॉप हो गया उसके बाद ची फिर किधर जाएगी, नया शुरू करने के लिए किडनी से लिवर जाएगी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, मैं सेडेशन का वो एक जगह आपने सेडेट, अभी सेडेशन का अपन बात कर रहे थे ना, हाँ तो अपन जब सेडेट करते हैं तो किडनी से लंग्स, लंग्स से स्प्लीन, स्प्लीन से हार्ट, फिर लिवर, लिवर लिवर, से फिर किडनी। हाँ लिवर से किडनी जाएगा तो सेडेट होगा ना। हाँ नहीं, वो पिक्चर से थोड़ा ये कंफ्यूजन। हाँ होगा ना, ठीक है ना। हाँ तो इन बातों को हमने आज अभी देख लिया है, समय हो गया कभी 10 हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कल हम लोग इस पे और बात करेंगे कि हमारे पास, सबसे पहले हम लोग वी विल ट्राई टू सी कि हमारे पास ची की मेरिडियन कैसे बनी, कैसे बनेगी, वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग टोनिफिकेशन सेडेशन की बात करेंगे, देन वी विल गो टू थेरेपेटिक्स, है ना। आज के लिए बस इतना ही रखिए। एक बात ध्यान रखने वाली है, हम जब चलते हैं, है ना, तो हाथ पैर हाथ पैर हाथ पैर ऐसे चलता है। लेफ्ट हैंड अगर आगे है तो लेफ्ट पैर पीछे रहता है, और लेफ्ट पैर आगे जाता है तो लेफ्ट हैंड पीछे आता है। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि एक मेरिडियन, हमारी जो जेनरेटिंग साइकिल है वो कैसे चलती है, लिवर से हार्ट, लिवर की मेरिडियन पैर में है, हार्ट की मेरिडियन हाथ में है, पेरिकार्डियम की मेरिडियन हाथ में है, तो स्प्लीन की मेरिडियन फिर पैर में है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए टोनिफिकेशन सेडेशन हमको पैर और हाथों में करना पड़ेगा इफ वी वांट टू ट्रांसफर ची फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज। तो ची तो वो है जिसको हम एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर करेंगे तभी काम होगा, या फेज से पीछे लाएं, अगर जल्दी चली गई तब भी बीमारी है, और अगर नहीं गई तब भी बीमारी है। तो हमको फेज को या तो उसको उठा करके ऊपर फेज में डालना है या उसके नीचे फेज में लाना है, ताकि मूवमेंट, क्यों, क्योंकि हमारी हेल्थ का इंडेक्स, ओरिएंटल विजडम में हेल्थ का इंडेक्स क्या है, मूवमेंट है, फंक्शन है। हम पैथोलॉजी से नहीं जाते, हम काम कर पा रहे हैं ठीक से कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हेल्थ है। काम के लिए चीज चाहिए, ची हमको हमेशा कहाँ गड़बड़ हो रही, या तो वो चल नहीं पा रही है, रुक गई है, चल रही है तो गलत दिशा में चली गई, या चल रही है तो थोड़ी स्लो चल रही है तो एक फेज से दूसरे फेज में डाल दो, या अगर ज्यादा चली गई है तो आगे वाले फेज से पीछे वाले फेज में सेडेशन कर दो। दिस इज हाउ वी विल ट्रीट। कल हम लोग इस बात को करेंगे। ठीक है। हम्म।